So good evening children. In the previous class, कल की बात क्लास में हमने पढ़ा कुछ that is how population uh, changes are seen in a area, in a particular area या particular geographical region. ठीक है. So we have studied there are four factors, immediate factors which are affecting the population. One is the birth, the second is the death, the third is immigration, and fourth is immigration. Out of these two are positive, that is which are population increasing factors, and two are there which are population decreasing factor. Population increasing factor are the birth as well as immigration. Birth, that is the addition of new members by way of reproduction by birth, and immigration when some individual of particular species comes from some other geographical area, other habitat, maybe because of the scarcity of food or the adverse conditions or weather conditions or predators, etc., whatever can be. Okay. And the negative factor, that is the population decreasing factor, are death as well as the movement of the individual from this location to a new location, that is immigration. Okay. So we have already studied the formula हमने कल पढ़ा था, कल के क्लास के अंदर. That is the population after t time will be nt plus 1 is equal to nt, that is the initial population, plus the birth and immigration minus death and immigration. So that was the formula. We already done one of the numerical also, two numericals. One numerical I had given to you. I think you must have done it. ऐसा मैं सोचता हूँ. Yes sir, yes sir. बच्चों के बातों पे यकीन रहता है, तो आपने बोले यस, तो इसका मतलब यस. और कोई मुश्किल काम भी नहीं था, जोड़ बाकी था, वो तो तीसरी क्लास के बच्चे भी करते हैं. ठीक है. So that's all. Let us continue the next topic. Okay. Okay, children. So when we already studied the what is meant by population growth and how population growth can be affected, today we are going to study the growth models. Okay. Two common or most common growth models are there. They are very useful tool for, especially for the economics, okay, where people want to know that what will be the availability of the food after a certain period, what is the way the population is increasing, what way the various type of resources, may it be food, may it be place to live, may it be that is education and etc. Okay. But that is only for human beings. Okay. When we talk about the economics, we are actually discussing about the human and human related things. But when we talk about the growth model in this chapter, that is population, we are talking about any and all species. ठीक है. किसी भी species को हम यहाँ पे consider कर सकते हैं. May it be grass, may it be people tree, may it be lotus plant, may it be grasshopper, may it be ants, a particular type of ants or a certain type of frog. ठीक है. So there are two common growth models are there. We shall study about them one by one. तो देखते हैं. I suppose I have put the recording on. Okay. So the growth model, first one is exponential. तो पहले growth model की definition पढ़ लेते हैं. Growth model क्या? Does the growth of a population with the time show any specific predictable pattern? क्या उसमें predictable pattern है? Yes, until unless some exceptional changes take place. Until unless some natural calamity type of thing take place, population को हम predefine कर सकते हैं, predict कर सकते हैं what will be the population after a certain period. ठीक है. The growth rate is clearly understood to us and we know that when the rate जो भी चीज होता है उसका किसी चीज का कंपैरिजन टाइम के साथ में या किसी और चीज के साथ में, रेट का मतलब क्या है? इट्स अ कंपैरेटिव डेटा. ठीक है. तो आपको अगर मालूम है रेट क्या है, देन यू कैन इवन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर सर्टेन टाइम. तो सपोज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अ स्पीशीज इज 0.001 per year या per month, then
the number of period or duration, whatever is given to you, you have to simply multiply it with that, and you'll get the new population. So we have been concerned about the invariable human population growth and the problem created by it in our country. ठीक है, पॉपुलेशन के बाद प्रॉब्लम पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन नहीं जानता. इट इज एवरीडे डिस्कशन. वी नो दैट whenever we talk about what you call, चला गया, कि जब भी हम जॉब की बात करते हैं, जब भी हम क्या कहते हैं एजुकेशन की बात करते हैं, whenever we talk about the प्राइजेस, है ना, की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो एक ही चीज सबसे पहले डिस्कशन में आती है, दैट इज द पॉपुलेशन इज सो मच, व्हाट टू डू. इफ द पॉपुलेशन इज दैट मच, द गवर्नमेंट कैन नॉट अवेल फूड फॉर एवरीवन, एंड नेचुरली द फूड स्कैर्सिटी विल बी देयर एंड द फूड प्राइसेस विल गो अप. It is the population which is increasing, so everyone's residential houses are not possible. So the residential areas or residential houses and the industries and the that is house other whatever type of commodities etc are there, they all run short, and that is why the prices increases. तो ये हम पढ़ते आए हैं. जब भी बात करती है गवर्नमेंट किसी भी चीज के लिए, whatever type of facilities, whatever type of services, whatever type of things are when we talk about, so we simply bring the population into consideration. So these are the things, these are the problems which are related with the population. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं. तो created in our country and therefore natural for us to curious if different animal population in the nature behave in the same way. क्या दूसरे ऑर्गन्स की पॉपुलेशन भी इसी की तरह बिहेव करती है, और या किसी और टाइप से करती है ऑन द ग्रोथ. परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, ये कहना आसान है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द ह्यूमन बीइंग. एनिमल्स की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिडेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ द अदर टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड अदर टाइप ऑफ एक्शंस. ठीक है, बट वी कैन नॉट पुट ह्यूमन बीइंग इनटू दोस टाइप ऑफ कंडीशन. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फूड स्कैर्सिटी है इसलिए आप मर जाओ, खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रीडेटर्स बढ़ गए हैं तो वो क्या है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, मर जाओ. शेर अटैक कर रहा है तो कर रहा है. अगर किसी एक कॉलोनी में या किसी एक रेजिडेंशियल एरिया में कोई एक पैंथर घुसे आता है या कोई दूसरा जानवर घुसे आता है, तो आप देखते हो कि किस तरह से सरकार पर ब्लेम लगने लगते हैं, एंड हाउ फास्ट गवर्नमेंट कम्स इन एक्शन. ठीक है, इवन वन चाइल्ड फॉल्स इनटू अ वेल, वो ट्यूबवेल, तो आप देखते हो कैसा पूरा का पूरा सरकारी अमला जो है वहां पर लग जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट सिंपली अलाउ एनी one individual even to go like उसको जानबूझ के मरते हुए नहीं छोड़ सकते. ठीक है, and that is why we have seen that when the people were dying out of corona, though corona was a natural disaster, though it was a क्या कहते हैं उसको, वो godly क्या कहते हैं इफेक्ट था, लेकिन फिर भी हम उसको ये कह करके नहीं कि यार ये तो भगवान की इच्छा है, आप मर गए तो मर गए हैं, भगवान ने बुला लिया अपने पास करके हम किसी को छोड़ नहीं सकते. द इम्पैक्ट द गवर्नमेंट विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो हम केवल ये कहना है कि भाई जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है, ह्यूमन के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या व्हाट इज रॉन्ग, दिस विल बी नॉट ए आइडियल आइडिया टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, चलिए, दो तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं, उनमें से पहला है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो लेट अस टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल का मतलब है दैट इज वो गो ऑन, कोई भी चीज जो है वो अनंत तक चलती जाएगी. ठीक है, एक्सपोनेंशियल that is the resources, food and space availability is obviously essential for unimpeded growth of the population. रिसोर्सेज अगर प्लेंटिली अवेलेबल है तो पॉपुलेशन के लिए अथाह संभावना है बढ़ने की. ठीक है, इफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी, द पॉपुलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इज इट सो? यही होता है नेचर के अंदर. ठीक है, हम देखते हैं soon after rain when the grass etc their number increases, the herbs number increases, we see that the number of herbivores greatly increases. ठीक है, at the same type of insects, variety of insects also increase, तो insectivores जो हैं उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं. Those snakes which were otherwise not be
सीन वो अचानक से आपको दिखने लगते हैं रेनी सीजन में. दोज फ्रॉग्स which were otherwise not to be seen वो अचानक से दिखने लगते हैं वो सारे टाइम आवाज करते रहेंगे. तो why and where these animals goes in the rest of the time. और अगर ये सब मर गए तो फिर अगले सीजन में कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर आएगा तो उसके लिए दैट सिंपल सी थिंग अपन ने पढ़ा है कि दैट इज अ सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो इंडिविजुअल विल आल्सो अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल. तो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल ही नहीं है. अगर सारे के सारे फ्रॉग ही मर गए हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं कि rest of the time we are not able to see any snake or any frog, then that means वो अगर नहीं है तो फिर आगे अगले सीजन में स्नेक कहाँ से आ गए, या फ्रॉग्स कहाँ से आ गए, या लोकस्ट कहाँ से आ गए, या अदर इंसेक्ट कहाँ से आ गए, या ड्रैगन फ्लाइज कहाँ से आ गए, या मस्किटोस कहाँ से आ गए. खैर मस्किटोस तो ह्यूमन के आसपास मंडराते रहते हैं साल भर, तो मस्किटोस को हम ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते. लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई जो आपको इतने सारे दिख रहे हैं अभी ग्राउंड में, स्कूल में भी आप लोग आते हैं, एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग gazing or looking at these dragonflies and those variety of birds which are sitting there in the school, and there are number of insects if you just have to look at the floor. वैसे तो आप इतना ध्यान नहीं देते हैं because whenever I see you are walking with your books in hand or you will be simply chatting with others, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जमीन पे देखते जाएं कि कौन सा इंसेक्ट दिख रहा है, या कौन सा क्या कहते हैं वर्म दिख रहा है, या सेंटीपीड दिख रहा है, या कोई दूसरा जानवर दिख रहा है. ठीक है, until unless it is really dangerous और अचानक से किसी की नजर पड़ जाए तो वो चिल्लाए और सबका ध्यान आ जाए, वो बात अलग है. अदरवाइज तो यू डोंट सी. तो आई मीन टू से इफ वेयर दीज इंडिविजुअल्स गो देम, ठीक है, तो वो जा नहीं रहे हैं कहीं, वो अनफेवरेबल कंडीशन से अपने को बचाने के लिए, एंड व्हेन द रिसोर्सेज बिकम लेस, these individuals either move to some other location, whatever, so their number are all of a sudden decreased. ठीक है, तो ये कह रहा है कि resources, that is the food and the space availability, is obviously an essential for unimpeded growth of a population. Ideally, when resource in a habitat are unlimited, जो कभी हो नहीं सकते, resources are in a habitat are unlimited, each species an ability to realize fully its innate potential to grow in number. तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो रिसोर्स जो स्पीशीज होगी वो अपना पूरे पोटेंशियल को यूज करके पॉपुलेशन को बढ़ाती है टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. So that is why you see the number of insect, number of insectivores, number of snakes, number of frogs, number of other जो दूसरे insect eating animals होते हैं, ये सब जो हैं उनके नंबर तेजी से बढ़ते हैं. कब? रेनी सीजन. And then slowly we find that the grasses are decreased, the number of insects are decreased, then other animals भी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो रिसोर्स पे डिपेंड कर रहा है. अगर चलिए सारे के सारे रिसोर्स हम मान लेते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, कम नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन कहाँ तक बढ़ेगी? कहाँ तक बढ़ेगी? मान लीजिए आपने एक केला खा करके और जो है कुछ हिस्सा फेंक दिया बनाना का, तो इसके ऊपर मक्खी आके अपने अंडे देगी, और मान लीजिए उसने जो है वहां पे 500 अंडे दिए, दूसरी मक्खी ने भी वहां अंडे दिए, तीसरी मक्खी ने भी उसने अंडे दिए, तो काफी सारे लार्वा बनेंगे, काफी सारे प्यूपा बनेंगे. फिर क्या होगा? देयर विल बी ए स्कैर्सिटी ऑफ फूड. अब ये लार्वा प्यूपा कोई वहां से उड़ करके दूसरी जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो इनका जो रिसोर्स इतना सा ही था, इतना सा जो टुकड़ा आपने गिरा दिया उसके ऊपर तो वहां पे क्या है, काफी सारे इंसेक्ट्स, लार्वा, ये जो लार्वा एंड प्यूपा वगैरह जो थे वो मर जाएंगे, दे विल डाई. एंड अल्टीमेटली व्हाट विल, मे बी 50, मे बी 20, मे बी 100, यही सर्वाइव करेंगे, बाकी सब जो है यहाँ से मर जाएंगे. ये सब मर गए बिकॉज इनको फूड नहीं मिला, बिकॉज देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ फूड. मोरएवर इनका जो एक्सक्रीटा था वो भी वहीं का वहीं था, उसी के अंदर ये लोग पल रहे थे, तो धीरे धीरे इनके नंबर भी कम हो. सो ओनली अ फ्यू सर्वाइव्स. मान लीजिए इतने सर्वाइव करे, मान लीजिए 20 सर्वाइव करे, या 30 सर्वाइव करे, या 42 सर्वाइव करे, या 58 सर्वाइव करे, बस यही करेंगे. थे कितने? कई सौ थे वहां पे. ठीक है, एक क्या कहते हैं, डॉग के जो है मान लीजिए 8 बच्चे हुए, तो सारे के सारे 8 सर्वाइव नहीं करते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है. नाउ इट इज नॉट ओनली द रिसोर्स विच विल डिसाइड. ठीक है, अब यहाँ पे डार्विन की बात करते हैं. डार्विन ने क्या कहा था? अगर आपको डार्विन की थ्योरी पता है, नहीं है पता होगी क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है डार्विन की थ्योरी, अपने 10th क्लास में पढ़ी थी, बट देन यू वर जस्ट स्टडिंग फॉर द पासिंग पर्पस, तब आपने उसको याद करने के लिए नहीं पढ़ा था. तो डार्विन ऑब्जर्व दैट व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसने क्या कहा कि इवन द स्लोएस्ट ब्रीडर,
व्हाट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर? हम जान रहे हैं कि वो एक एलिफेंट है। तो वो जो स्लोएस्ट ब्रीडर है ना, एक एलिफेंट, वो भी जो है अगर हम एक पेयर एलिफेंट से शुरू करेंगे, अगर हम वन पेयर ऑफ एलिफेंट से शुरू करेंगे तो 750 ईयर्स के अंदर हमारे पास में 1 बिलियन एलिफेंट हो जाने चाहिए, इफ ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल। तो हमारे पास कितने एलिफेंट हो जाएंगे? 750 ईयर्स के अंदर हमारे पास 1 बिलियन हो जाने चाहिए। मतलब आज से, अगर आज भी 1 बिलियन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आज से 750 साल पहले क्या 1 पेयर भी नहीं था क्या? आज अगर 1 बिलियन नहीं है, इसका मतलब क्या आज से 750 साल पहले एलिफेंट होते ही नहीं थे क्या? तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या मतलब है इसका? कि रिसोर्सेज जो हैं वो तो प्लेंटी हो सकते हैं, पहली बात तो रिसोर्सेज ही कम थे, और देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रोलिंग इट, ठीक है। बट डार्विन ने उसको रिसोर्स के साथ नहीं जोड़ा। सबसे पहले उसने कहा कि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है, कंडीशंस अगर फेवरेबल है, तो उनके नंबर बढ़ते ही चल जाएंगे। देन द पॉपुलेशन ग्रोज टू एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। ज्योमेट्रिक फैशन क्या है? कि 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन of size n, the birth rate, that not total number of birth rate की बात कर रहे हैं, not the number of individual, ठीक है, not the number of individual added by birth, ठीक है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, दैट इज द बर्थ रेट, दैट इज द पर कैपिटा बर्थ आर रिप्रेजेंटेड बाय बी। अगर बर्थ रेट को हम बी से रिप्रेजेंट करें और डेथ रेट को हम डी से रिप्रेजेंट करें, तो बी माइनस डी जो है एक नया क्वांटिटी हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, है ना। बी माइनस डी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन इंक्रीज और द डिक्रीज इन द एन ड्यूरिंग यूनिट पीरियड टी को हम डिफाइन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्या कहते हैं पॉपुलेशन इन डी टी टाइम विल बी बी माइनस डी इंटू एन। तो b माइनस डी को हम एक नया क्वांटिटी दे रहे हैं जिसको हम r कह रहे हैं, r को हम कहते हैं दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हमारी बर्थ, हम पॉपुलेशन को किस हिसाब से डिफाइन करेंगे आफ्टर t टाइम? तो दैट विल बी डिफाइंड एज d अपॉन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू r इंटू एन, ठीक है। तो आर जो है वो क्या है? डेथ रेट माइनस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। और जितने टी पीरियड के लिए ले रहे हैं उस पीरियड के हिसाब से अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो the r is the equation in which r in this equation is the intrinsic rate of the natural increase, and it is very important parameter chosen for assessing the impact of any biotic or abiotic factor in a population। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमने बायोटिक और अबायोटिक दोनों को लिया है, अब हम केवल रिसोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर नेचुरल कैलामिटीज भी आती है, अबायोटिक फैक्टर के अंदर डिजीजेस भी आ रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। नाउ टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर नॉर्वेन रैट। नॉर्वेन रैट एक वैरायटी है, उसके लिए किसी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया होगा, इसलिए आपके बुक में सिंपली उसको उठा कर रख दिया है यहाँ पे। तो समझने के लिए कि आर क्या है, आर का कितना क्वांटिटी का क्या मतलब रखता है, ये समझने के लिए आप इसको देखिए। क्या द to give you some idea of about the magnitude of r, कि r वैल्यू का क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या क्वांटम होगा इसका। फॉर नॉर्वेन रैट r is only 0.015। नॉर्वेन रैट का कितना है? r is equal to 0.015 फॉर। और जबकि जो जो गेहूं के अंदर कीड़े लग जाते हैं ना, उनको जो क्या कहते हैं, इल्लियां कहते हैं अपन, ठीक है। वो जो इल्ली होती है, वो इल्ली जो छोटे छोटे से काले काले से इंसेक्ट जो होते हैं, उनके लिए ये कितना है? 0.12। तो आप ये देखिए कि नॉर्वेन रैट जो है वो क्वाइट स्लो रेट से ग्रो करेंगे देन द फ्लोर बीटल। आप जान रहे हैं कि गेहूं के अंदर अगर इल्लियां लग गई हैं तो वो थोड़े से ही टाइम के अंदर इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। अगर मान लीजिए एक बार आपने गेहूं देखा, उसके सैंपल के अंदर आपको कोई मान लीजिए एक मुट्ठी के अंदर या
एक एक मग जो है या 1 kg के अंदर आपको शायद 1 बीटल दिखा होगा, तो आप सोचेंगे यार एक ही तो बीटल है यार, आ गया होगा कहीं से, अपन जस्ट इग्नोर कर दें उसको। और 1 मंथ बाद वहां पे देखेंगे तो उतने ही क्वांटिटी के अंदर हमको हो सकता है वो 400-500 दिखे। ठीक है, जबकि नॉर्मन रैट जो है किसी एरिया के अंदर आपको अगर मान लीजिए किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लीजिए 10 फीट बाई 10 फीट का आपने कोई एरिया देखा और उसके अंदर आपको एक चूहा देखा है या 2 चूहे दिखे, ठीक है, 1 और 2 रैट्स आपको दिखे, तो उतने ही पीरियड के अंदर, जितने पीरियड की उसकी बात कर रहे हो, उतने ही पीरियड के अंदर इनके नंबर देखेंगे तो बहुत ही स्लो रेट से ग्रो कर रहा होगा। तो फाइंड आउट व्हाट इज द करंट आर वैल्यू ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके लिए आपको जो है गूगल की सहायता लेनी पड़ेगी, कर सकते हैं, है ना। इन 1981 द आर रेट आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। काफी ज्यादा है ये नंबर, देखने में तो लग रहा है कि 0.025। क्या मतलब है इसका, है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर केवल इतना सा डिफरेंस था, 0 मतलब इतना, सॉरी इतना सा नहीं, इतना ग्रेट डिफरेंस था। ठीक है, तो बर्थ रेट जो है इतना से ही ज्यादा था, मतलब डेथ रेट से, है ना। लेकिन ये जो नंबर है वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है जब हम पूरी पॉपुलेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ड्यूरेशन के साथ। तो देखिए, द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन एंड द रिजल्ट इज जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व कैसा होता है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, dn/dt इक्वल टू r है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मतलब क्या है, जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा, पहले पॉपुलेशन बड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एंड फिर वो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होगा वो बड़ी तेजी से होने लगता है, बिकॉज जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा r से उसका मल्टीप्लीकेशन का क्वांटम बढ़ता चल जाएगा, एंड देन ये बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो आप ये देखिए, ये सारा कुछ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको नंबर ऑफ इंसेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं कि कितनी तेजी से ग्रो करते हैं, या नंबर ऑफ जो इस तरह के सीजनल एनिमल होते हैं वो किस तरह से बड़ी तेजी से देखने को मिलते हैं। हालांकि रिसोर्स फिर हमेशा नहीं बढ़ते हैं, इसलिए फिर व्हाट है, ऑल ऑफ सडन दे कम टू ए मिनिमम लेवल। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती भी तेजी से है, और उसके बाद में आपको उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। व्हाई ड्रॉप इज देयर, बिकॉज रिसोर्स जो है वो हमेशा इंक्रीज नहीं होते हैं, हमेशा मेंटेन नहीं रहते हैं। रिसोर्स तो जो है एक पीरियड के लिए है, उसके बाद तो वो रिसोर्स खत्म होना ही है। रिसोर्स वी कैन नॉट बी देयर फॉर एवर, है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो जो है वो रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे, एंड देन देयर विल बी अ चेक ऑन द पॉपुलेशन, फिर वो ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना है। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन and the result is J-shaped curve when we plot n relation to the time, है ना। पॉपुलेशन को आप जो है टाइम के हिसाब से, यहाँ पे आपने टाइम फैक्टर लिया है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इफ यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस विच आई एम नॉट, और हो सकता है आप भी नहीं होंगे, है ना, तो आप केवल इसको रट डालिए। यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हमको ये किस हिसाब से मिलता है, दैट इज population after t time, that is nt is equal to n0, that is initial population, e to the power r into t। ठीक है, e to the power जो है, e जो है वो क्या है, that is the basic logarithm है जिसकी वैल्यू ये रहती है ना। और r अपन ने देखा ही है, वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, d माइनस क्या कहते हैं b माइनस d, और t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन के अंदर जो है पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉपुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2.71828 इन टू द पावर आर इज आपको पता ही होगा, जहाँ जो भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एंड टी जो है द टाइम के लिए पूछा है, उस हिसाब से आप रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। Now any species grow exponentially under unlimited resource condition can reach to enormous population। तो जब वो पॉपुलेशन इनॉमरस हो जाएगी तो कभी ना कभी तो जाकर के जो है रिसोर्स मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, कभी मतलब पॉपुलेशन में रिसोर्स की कभी कमी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, माइनर छोटे मोटे ऑर्गेनिम्स के लिए हो सकता है, आपने 1 क्विंटल गेहूं ला करके रखा है घर के अंदर, उसमें 2 इल्लियां आ गई हैं, तो उनके लिए तो वहां पे सारी कंडीशन फेवरेबल है ना, और वो 3-4 महीने के अंदर आपका पूरा गेहूं खा के खत्म कर देंगे। वो इतना तेजी से ग्रो करती हैं कि आपको जो है वहां पे सिर्फ आटा ही आटा बिखरा हुआ दिखेगा। ठीक है,
एंड देन आपको अगर सही टाइम पे नजर आ गया तो आप क्या करेंगे, आप जा करके कुछ मेडिसिन ला सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं, फिर गेहूं को धो करके सुखा सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज यू सिंपली थ्रो दैट, डिस्कार्ड इट। ठीक है, तो वही हमारे पास तरीका रह जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से वीट के अंदर जो है बोर करके वो इंसेक्ट घुस गया अंदर। अब वो गेहूं हमने पीस दिया तो फिर हमको उसको भी खाना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप उसको इंसेक्टिसाइड जो है वो ईबीडी जो मिलते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, है ना, डाइब्रोमाइड एडीबी, है ना, या कुछ और मिल सकते हैं इस तरह के, उनको डाल करके अगर आप इनसे खत्म कर सकते हैं, देन यू वॉश इट। जितने भी खोखले होंगे वो गेहूं ऊपर आ जाएंगे, उनको सबको हटाइए, और नीचे जो साफ है, हेवी है नीचे हैं, उनको ला करके और फिर किसी धूप वाले दिन छत पे स्प्रेड कर दीजिए। ये तो थोड़ा चौंचले का काम है, गेहूं को इतना महंगा नहीं है, तो हम 200, 250, 500, 2000 रुपये खर्च करके नया सेट ला सकते हैं। ठीक है, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन हम बाजार से जो गेहूं लाते हैं उसकी कोई आटा लाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसके अंदर क्या होता है। एनीवे, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल के रिसोर्सेज के साथ में पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। तो रिसोर्सेज उन चीजों के लिए, वो इंसेक्ट वगैरह के लिए जो है वो प्लेंटी हो सकता है। स्कूल में आप देखिए कबूतर कितने हो रहे हैं, ढेरों। ठीक है, तो वहाँ क्यों हो रहे हैं, बिकॉज उनको रिसोर्स, उनका कोई प्रीडेटर नहीं है वहाँ पे। वो ऐसी जगह पे चढ़ के बैठ जाते हैं जहाँ कोई बिल्लियां पहुंचती नहीं है, कोई दूसरा कुत्ता नहीं पहुंच सकता, कोई दूसरा जानवर नहीं पहुंच सकता, है ना। स्कूल प्रेमिसेस के अंदर कोई वाइल्ड एनिमल नहीं घुस पा रहा है, तो उनको मजा। और फिर अब तो खैर अभी तो द नंबर ऑफ ड्रास्टिकली डिक्रीज, है ना। एक तो बच्चे नहीं आ रहे, उनको खाना नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, रोजाना जब बच्चे आते थे तो काफी कुछ खाना नीचे गिर जाता था। तो जब वंस द चिल्ड्रन यूज्ड टू लीव, ये सारे कबूतरों की अच्छी वहां पे डाइट हो, मतलब क्या कहते, पार्टी होती थी, है ना। तो वो खा पी करके वहां पे अंडे दे रहे होते थे, उनके नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। अब क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो द नंबर ऑफ pigeons are also limited. Either they must have died or they must have moved to some other location. ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, any species यहाँ से पढ़ते हैं। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach to the enormous population density in a short time. जो मैंने आपको दो एग्जांपल बताए उससे समझ सकते हैं। Now, Darwin showed that how even slowly growing animal like elephant could reach to enormous number in absence of check. तो डार्विन ने क्या कहा था कि स्लोज ब्रीडर एलिफेंट भी अगर आप 1 पेयर से शुरू करोगे तो 750 साल में आपके पास 1 बिलियन हो जाएंगे। कब? जब देयर इज नो चेक, जब वहां कोई उनका प्रेडेटर नहीं है, जब उनको प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है, जब उनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो फुल्ली एक्सप्लॉइट हो रही है, तब। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक चीज नहीं हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उस हिसाब से नहीं होगी, जो कि हम यूजुअली देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट पॉपुलेशन पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट एंड ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप इन ग्रोइंग एक्सपोनेंटली। तो एक राजा था, ये कहानी है ये छोटी सी। एक राजा था और एक उसका मंत्री था। वो राजा अपने मंत्री को, मतलब राजा को चेस वेस खेलना आता होगा, आता है, बहुत सारे लोगों का आता है। और वो एक मंत्री था, वो मंत्री को हमेशा बुला लेता था, आजा चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो मंत्री क्या करेगा बेचारा, राजा बुला रहा है तो मना तो कर ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि वो मंत्री को बहुत अच्छा खेलना आता हो, फिर भी वो बेचारा हारता था जानबूझ करके, और राजा को इससे बड़ी खुशी मिलती थी। तो राजा ने जो है उसके साथ में रोज रोज खेल रहा है और उसको परेशान कर रहा है। एक दिन जो है मंत्री परेशान हो गया, बोले जब देखो जब बुला लेते हैं मेरे को, जब देखो जब बुला लेते हैं, है ना। और एक बात मालूम है कि अगर वो हार जाएगा उससे, मतलब जीत जाएगा और राजा हार गया तो भी प्रॉब्लम है ना। क्या पता क्या सजा देते, राजा लोग तो होते ही सनकी थे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गए, मिटा देते हैं। चेस बोर्ड आपको आता है ना, चेस बोर्ड के अंदर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं 8। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ऐड कर देते हैं 8। तो ये उसका चेस बोर्ड था। इसने एक दिन राजा को कहा, तो राजा परेशान हो गया, बोले ये मंत्री परेशान हो गया, जब देखो जब भी मेरे को परेशान करता रहता। तो मंत्री ने उसे कहा कि
ठीक है साहब, आज अपन एक शर्त लगा के खेलते हैं। तो राजा बोला कि तू क्या शर्त लगाएगा, तेरे पास है क्या मुझे देने के लिए? तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो कुछ भी लगा लो। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तू तो मुझे क्या देगा, बाकी अगर तू जीत गया तो जो तुम मांगेगा वो मैं दूंगा, एनीथिंग, इवन हाफ ऑफ माई किंगडम ऑल्सो इफ यू आस्क, तो आई विल गिव यू। उसने कहा ठीक है साहब, मेरे को इतनी ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। और वो खेलना शुरू करे तो धीरे धीरे उस दिन मंत्री जी ने अपनी चाल दिखा दी। एक एक करके वो ने जो है राजा की गुटियां हराई और उसने चैलेंज करके और फाइनली वो राजा को उसने चेकमेट कर दिया, उसने हरा दिया। तो जब राजा हार गए तो बोला कि ठीक है भाई, अब शर्त तो लगी गई थी, तो मांग ले भाई, तेरे को क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए सिर्फ इतना सा करो। क्या करना है आपको कि ये जो चेस बोर्ड पड़ा है, इस चेस बोर्ड के अंदर आपको हर क्या कहते हैं खाने के अंदर कुछ दाने रखने हैं। फर्स्ट वाले में 1 रखना है, दूसरे में उसका डबल 2 रखना है, थर्ड वाले में उसका डबल 4 रखना है, 8 फोर्थ वाले में उसका डबल 8 रखना है, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ 64 और यहाँ 128। तो राजा ने बोला अबे मांगा भी तो क्या मांगा, मैंने सोचा तो मेरा आधा राज्य मांग लेगा, मैंने सोचा तो मेरा महल मांग लेगा, तो मैंने सोचा ये मांग लेगा, सोना मांग लेगा, चांदी मांग लेगा, ये क्या मांगा तुमने? गेहूं बस, ओनली व्हीट एंड दैट आल्सो एट दिस रेट। उसने कहा दे दो भाई इसको, जो इतना मांग रहा है दे दो। लेकिन जब तक वो बढ़ता बढ़ता आधे तक भी नहीं पहुंचा, उसने देखा कि उसके पूरे राज्य का गेहूं जो है वो मंत्री के पास चला गया। क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं हर कॉलम के हर क्या कहते हैं जो क्या कहेंगे उसको, हर खाने के अंदर जो है उसका नंबर बढ़ता जा रहा था। यहाँ 128 हुआ, यहाँ 256 हो गए, यहाँ पे 512 हो गए, यहाँ पे 1024 हो गए, यहाँ 2048 हो गए। अब देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ 4096 हो गए, यहाँ पे 8100 एंड समथिंग हो जाएगा। 100 मान के उसमें से 8 कम करना है तो 192 हो जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे 16,000 एंड समथिंग, यहाँ 32,000 समथिंग, 64,000 ये है ना, 1 लाख समथिंग करते करते और आधे तक पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि ये तो सारा का सारा हमारा राज्य का गेहूं खत्म हो गया, सारा का सारा राजा के कब्जे, मंत्री के कब्जे में आ गए। उसके बाद अब मंत्री जी की मर्जी है, मंत्री जी गेहूं का कुछ भी रेट रखे। राजा को भी इसने जो है भिखारी बना दिया, उन्होंने बोला मुझसे मांगना पड़ेगा आपको। तो दिस वाज अ एज ओल्ड स्टोरी, पुराने जमाने की एक स्टोरी है ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई जो है राजाओं के घमंड जो है वो किस तरह से चूर किए जाते हैं, उसके लिए था। लेकिन यहाँ पे हम इसको ही बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये जो एनेक्डोट है वो हमारे को ये समझाने में काम आ रहा है कि जो जो आर रेट है वो किस तरह से मतलब काम कर रहा है। दो इट में बी अ वेरी स्मॉल रेट, बट अगर आप उसको टाइम के साथ में ले रहे हैं तो वो रेट को मल्टीप्लाई करता जा रहा है ना। और मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो है मतलब जो ग्रोथ रेट होती है वो डबल होती चल जाती है इन सर्टेन पीरियड, है ना। तो वो कितनी तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो ये एक बहुत सुंदर सा एक कहावत है, कहानी है जो कि ये समझाने के काम आ रही है। ये मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग शुरू करते हैं। ओके, तो दिस वाज एन आइडिया कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती है, और जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती है तो वो जो है कितनी तेजी से बढ़ेगी, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट गो ऑन एंड ऑन ना। एक तो टाइम आएगा जब वो जो है ग्रोथ करके उसके लिए रिसोर्सेस लिमिटेड हो ही जाएंगे। कभी न कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब रिसोर्सेस कम होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखिए, अगर मैं यहाँ से इस राजा की कहानी को अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो ये देखिए, he started with a single grain in the first square and proceeded to fill the other square by following the minister's suggested procedure, कि हर कॉलम के अंदर हर स्क्वायर के अंदर इसको डबल करना है। बट बाय द टाइम ये कवर हाफ ऑफ द चेस बोर्ड,
आधा चेस बोर्ड कवर करते करते क्या देखा, द किंग रियलाइज दैट हिज to his dismay that all the wheat produced in the entire kingdom pooled together would not be still adequate to cover all 64 squares. So now think how tiny paramecium starting with a single individual through a binary fission doubling in every डे, जो पैरामीशियम होता है वो 1 डे के अंदर डबल हो जाता है, ठीक है, डबलिंग एवरी डे. इमेजिन व्हाट विल बी द व्हाट माइंड ब्लोइंग पॉपुलेशन साइज इट वुड रीच इन द 64 डेज. ठीक है, तो फूड एंड अदर रिसोर्सेज जो है वो सब कुछ फेवरेबल है. तो और यही चीजें आप देखेंगे. तो मैं भी अक्सर बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ कि मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी वादी है, मान लीजिए और आप कॉमन कोई दो फ्रेंड जो है एक ही शादी में बुलाए गए हैं और आप लोग बोलते हैं प्लानिंग बना लेते हैं कि बुला रहे तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा, करके प्रोग्राम बना लेते हैं. एंड देन वी डिसाइड कि यार चले अपन व्हाट टाइम यू आर रीचिंग, आई विल आल्सो रीच एट द सेम टाइम. एंड सपोज यू आर डिसाइडेड कि भाई आप जो है 8:30 वहां पे पहुंच जाएंगे. तो आपने भी 8:30 पहुंचने का और उसने भी 8:30 पहुंचने का प्रॉमिस किया. एंड हम जो है 8:30 वहां पे, अब मान लीजिए यू रीच देयर एट 8:30, है ना, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड. अब तो मान लीजिए 15-20 मिनट्स नहीं आया, फोन करा आपने उसको कि क्या हो गया, तू क्यों नहीं आया, अरे यार पापा नहीं आया, ये हो गया वो है, जो भी है, मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, मेरे को तो टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा या 2 घंटा लग जाएगा, जो भी है. तो सपोज दिस इज देन अल्टीमेटली यू डिसाइड कि भाई आप कब तक उसका वेट करेंगे. सपोज यू स्टार्ट ईटिंग योर फूड, और जब आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं तो स्टार्टर्स में आपने जो है कुछ कुछ चीजें देखी, तो आपने वहाँ पे दही वड़ा खाया. क्या खाया आपने? दही वड़ा, है ना. और दही वड़ा आपको बहुत टेस्टी लगा, ठीक है, और आपने अपने दोस्त से कहा कि भैया वो दही वड़ा जो है वो बहुत टेस्टी है, तू आए तो उसको मत छोड़ना, है ना, मैं तो 4 खा चुका हूँ अब तक. तुक्का तो कोई भी मार सकता है, बोलने में क्या है, मैं तो 4 खा चुका हूँ, तू जो है दही वड़ा मत छोड़ना, बाकी भले कुछ खाए चाहे नहीं खाए. और आपने बार बार दही वड़ा के क्या कहते हैं उसमें जो है आपने कसीदे पढ़ दिए, बोलो अरे ऐसा है दही वड़ा, वैसा है दही वड़ा, आज तक मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा है, खूब बढ़िया मसाला है, इतना टेस्टी है, ये है वो है, जो भी है. अब आपका दोस्त आता है वहां पे मान लीजिए 9:30 और 10 o'clock, ठीक है. 10 PM पे जब आपका दोस्त वहां पर आता है और वो आते के साथ ही सबसे पहले कहाँ पहुंच जाता है? दही वड़ा खाने के लिए. एंड व्हेन ही रीचेस देयर एट दही वड़ा स्टॉल एंड ही ईट्स वन, एक चम्मच अपने मुंह में, पहले तो उसने सर्व कर लिया खूब सारा, 3-4 दही वड़ा डाल लिया अपने प्लेट के अंदर, और जैसे ही वो सर्व करने के लिए 1 टीस्पून मुंह में रखता है, ही फाइंड इट अटर सॉर, खूब खट्टा मिल रहा है उसको, खूब खट्टा. क्यों मिल रहा है खूब खट्टा? क्योंकि जब आपने खाया 8:30 जब आपने खाया, तो हो सकता है कि 1 टीस्पून ऑफ दही वड़ा जो आपने खाया उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल वहां पे 50,000 बैक्टीरिया थे, है ना, 50,000 से तो ज्यादा ही होंगे लेकिन मैंने ऐसे ले लिया, 50,000 लैक्टोबैसिलस थे. तो लैक्टोबैसिलस जो 50,000 है, उसके कारण वो जो जो उसका टेस्ट आ रहा है उसको आप देखिए एवरी 20 मिनट के अंदर डबल हो जाता है. तो 8:30 से 10 कितने मिनट हो गए, कितने मिनट्स हो गए, अगर हम देखें तो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट्स. 90 मिनट्स के अंदर अगर 20 मिनट्स के अंदर ये डबल हो जाते हैं, तो दैट इज 50,000 का ये 1 लाख हो गए, 1 लाख के ये 2 lakhs हो गए, है ना, 2 lakhs के ये 4 lakhs हो गए एक चम्मच के अंदर, है ना. और बल्कि प्रोसेस अभी चल रहा है आगे भी, तो ये 4 के 5 lakhs भी हो गए होंगे. 1 टीस्पून के अंदर कहाँ 50,000 और कहाँ 5 लाख, क्या द टेस्ट विल बी सेम? ऑफ कोर्स नॉट. एंड दैट इज वाई जब उसने अपने मुंह में ये तो डाला है, तो 50,000 से 5 लाख बैक्टीरिया हो जाना मतलब इट इज सिंपली हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज. तो वो जो है मतलब ऑल पॉसिबल थिंग आपको कह देंगे, हो सकता है बाय द टाइम यू ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम, ठीक है, देन वो फोन मिला करके आपको ऑल पॉसिबल थिंग कह देंगे कि अच्छा तुम मेरे से किस चीज का बदला लेना चाह रहा था, क्यों मुझे परेशान कर रहा था, व्हाट यू थॉट, ये वो जो भी ऑल पॉसिबल थिंग जो भी वो बोल सकते हैं वो बोल देंगे. कहाँ चले गई हमारी मीटिंग? हाथ लगते ही क्या हो गया.
ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। एक दो एग्जांपल्स हमने लिए और इन दो एग्जांपल से आई थिंक इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप की ग्रोथ, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज एक्चुअली इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिसोर्सेज कैन नेवर बी अनलिमिटेड इन एनी गिवन प्लेस। किसी भी जगह पे रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, है ना। ह्यूमन के लिए अगर हम देखें तो अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज हमारे हिसाब से तो कब से ही खत्म हो चुके थे। ये तो हमने क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन और ये वो दुनिया भर के दूसरे तरीके लगा लगू करके पेस्टिसाइड्स का यूज कर करा करके हमारे लिए आर्टिफिशियली हमने फूड अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, ठीक है। और मकान भी क्या है, जमीन के ऊपर तो मकान रही ही नहीं है ना। अब तो मकान जो है लेंथ एंड ब्रेड्थ के ऊपर, तो जमीन के ऊपर तो आपको मकान दिख ही नहीं रहे किसी भी शहर के अंदर। तो अब आप क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना। और मल्टी स्टोरी भी पहले कोटा में जैसे 4 स्टोरी अलाउड था, फिर 4 का 6 हो गया, 6 के 8 हो गए, और अब तो जो है 16 स्टोरी बिल्डिंग जो है कोटा में अलाउड है। और अगर आप बॉम्बे जैसे जगह में जाएंगे तो वहाँ 100 स्टोरीज आर ऑल्सो अलाउड। तो आप सोचिए कि 100 स्टोरी मकान बनाने के लिए मतलब आपने 100 फ्लैट्स के लिए 100 मकान की जगह को आपने एक छोटे से एरिया के अंदर समेट दिया। अगर वो सारे मकान जमीन पे बन रहे होते तो आपके पास जमीन कहाँ रहती। 16 मकान की जगह जो है आपने उस एरिया के अंदर जिसके अंदर एक मकान आना चाहिए था, प्रैक्टिकली 2 या 4 मकान आते, वो 4 की जगह आपने 16 मकान खड़े कर दिए। तो आपने 4 गुना जो है ज्यादा मकान वहां पे बना लिए। तो इस तरह से हमने जो है रिसोर्सेज को अवेल करा है, ठीक है। वी हैव अवेल द रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर जहां तक बात कर रहे हैं तो हमने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ प्रैक्टिस जिसके अंदर हमने जो है तरह तरह से क्या क्या तरीके लगाए। हमने हाइल्डिंग वैरायटीज लगाई, हमने पेस्टिसाइड्स लगाए टू कंट्रोल दैट इज डैमेज और क्या कहते हैं लॉस ऑफ द प्रोडक्शन। और इसके अलावा हमने फर्टिलाइजर्स लगाया, ठीक है। हमने इरिगेशन के सेवरल मेथड डेवलप करे हैं, हमने फूड स्टोरेज के अच्छे अच्छे तरीके डेवलप करे हैं स्टोरेज के, ठीक है। हमने लॉजिस्टिक के मेथड अवेलेबल करे जहाँ पे फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो, वहां से जिन जगहों पे फूड प्रोडक्शन कम होता वहां तक ट्रांसपोर्ट करना है और, ठीक है। हमने फूड प्रोसेसिंग के सही तरीके लगाए। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रैक्टिस है जिससे कि हमने जो है फूड की अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया है। अदरवाइज नेचुरल तरीके से अगर हम चलते कि भाई हमारी जितनी जरूरत है उतने का उतना जाओ और बना लाओ, है ना। और जैसे कि मतलब पुराने जमाने में लोग करते थे, जैसे हर आदमी के पास अपना खुद का खेत होता था, तो जो जरूरत होती थी वो खेत में जाता था, 4-5 क्या कहते हैं गाजर निकाल लाता था और 20-30 मटर निकाल लाता था और कुछ टेंडिया निकाल लाता था और कुछ आलू खोद लाता था और उनकी रोज की सब्जी बन जाया करती थी। नाउ दिस प्रैक्टिस इज नो मोर एप्लीकेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों को असाइन कर दिया कि भाई तुम फूड प्रोडक्शन ही करोगे, कुछ भी तरीका अपनाओ, हमें तो फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमने आर्टिफिशियली उन तरीकों को लगा लगा करके हमने फूड रिसोर्सेज को मेंटेन किया है। चाहे वो फूड रिसोर्स हो, चाहे वो क्लॉथ मटेरियल हो। क्लॉथ मटेरियल भी पहले हमारा सिर्फ नेचुरल फाइबर्स आ रहे थे। नेचुरल फाइबर पे अगर आज भी हम डिपेंड होते तो आधे लोगों को भी कपड़े नहीं मिलते। ऑल व्हाट वी आर वेयरिंग आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और दे आर अ ब्लेंड ऑफ द सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। तो ब्लेंड वाले से भी क्या हो रहा है, आपको मतलब काफी सारा मतलब कपड़ा मिल रहा है, और सिंथेटिक से भी मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों की जरूरत के हिसाब से हमको कपड़े मिल रहे हैं, अदरवाइज तो आधी पॉपुलेशन के पास पहनने को कुछ नहीं होता, है ना। और वो जिस हिसाब से आज कपड़े पहन रहे हैं ना, वैसे उस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? नो पॉपुलेशन No population of any species in nature has a disposal of unlimited resource to permit exponential growth. हो ही नहीं सकता ये, it is impractical, ठीक है। मैंने कहा था जैसे वो गेहूं का एक बोरी है, उस बोरी के अंदर भी आप कितना गेहूं रखेंगे, है ना। वो एक तो टाइम आएगा जब उसके अंदर वो जो जितने इंसेक्ट उसके अंदर है उनके लिए वो फूड कम पड़ जाएगा। देयर विल बी अ टाइम व्हेन द फूड अवेलेबल, मतलब जो जो रिसोर्सेज उसके अंदर है वो उनके लिए कम पड़ने लग जाएगा। तो उसके बाद इंसेक्ट मरने लगेंगे, ठीक है। या ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी क्योंकि वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर एक्सेल करेंगे कि वो जो है दैट मे बी डेंजरस फॉर देम। तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज नॉट ओनली फूड, रिसोर्सेज नॉट ओनली प्लेस टू लिव, रिसोर्सेज नॉट ओनली द क्लॉथ टू वेयर, बट
वो वाटर टू ड्रिंक भी हो सकता है, एयर टू ब्रीथ भी हो सकता है ना, प्लेस टू लिव हो सकता है, क्या कहते हैं घूमने फिरने की जगह हो सकती है, एंजॉय करने की जगह हो सकती है, सभी चीजें हैं, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो दिस लीड टू ए कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। इवेंचुअली फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, यही जो है डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जड़ है कि हर स्पीशीज के अंदर फिटेस्ट इंडिविजुअल होते हैं, वही सर्वाइव करेंगे। फिटेस्ट इंडिविजुअल कौन है? जो सर्दी को अच्छा टॉलरेट कर सकता है, जो गर्मी को अच्छा टॉलरेट कर सकता है, जो बरसात में बीमार नहीं पड़ता है, जो भूखा रह सकता है, जो गंदा खाना खा के भी जी सकता है, जो अपने खाने के लिए स्ट्रगल कर सकता है, वो दूसरे एनिमल से फाइट कर सकता है, वो बीमार नहीं पड़ता है, और जिस भी टाइप के रिसोर्सेज उसको अवेलेबल उसके हिसाब से वो रह लेगा, वो कोई अपना फूड का टेस्ट के ऊपर नहीं मरता है ना, और वो गंदा पानी नाली का भी पी लेगा, वो जैसा है ना, हर तरह की कंडीशन उसको मिल रही है, वो उनके हिसाब से अपने आप को सूटेबल बनाएगा, तब कहीं जाकर के वो जी पाएगा। अदरवाइज those individuals which are unfit, those who cannot do that, those who cannot survive in this type of condition, they will keep dying, है ना। तो हमने देखे हैं कि गली में जो है किसी कुतिया के जो है मान लीजिए 8 बच्चे पैदा हुए, है ना, 8 पप्स, तो ऑल 8 पप्स डज नॉट सर्वाइव, उसमें से कुछ जो है वो दे विल डाई बिकॉज ऑफ द हंगर, some will die because of the extreme weather change, some will die because they don't know how to cope up with the क्या कहते हैं रोड ट्रैफिक, तो वो रोड एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कुछ दूसरे एनिमल्स के साथ कंपटीशन में मर जाएंगे, है ना, कुछ आपस में ही कंपटीशन होगा, है ना, बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक उसी स्पीशीज के मेंबर से, वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन था, है ना। कुछ हो सकता है कोई डिजीज लग जाए और उसके बाद फाइनली ये मर गए, 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 कितने मर गए? 1 2 3 4 5 6 मर गए, बचे कितने? 2, एक पापा का एक मम्मी का, ठीक है। इसी हिसाब से पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, पॉपुलेशन कोई एक्सपोनेंटली ग्रोथ नहीं करती है, एक्सलोजिस्टिक ग्रोथ ही होती है वहां पे। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज द फैक्ट दैट and introduce various restraint with a view of limit human population growth. In nature, a given ability is enough of resources to support a maximum possible number. इसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी हैबिटेट के अंदर रिसोर्स जो है एक सर्टन पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये एक एरिया है जिसके अंदर कुछ घास है, कुछ के अंदर एक पॉन्ड है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे कुछ ग्रास उग रही है, जहाँ पे कुछ पॉन्ड है, जहाँ पे कुछ अदर टाइप की कंडीशन हैबिटेट है, वो हो सकता है वो हो सकता है कि वो 50 डियर्स के लिए सफिशिएंट हो सकता है कि वो क्या कहते हैं 80 रैबिट्स के लिए सफिशिएंट हो, है ना, कुछ और टाइप के हर्बीवोर वहां पे जोड़ लीजिए, और इन सब के लिए मान लीजिए एक सीजन के लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर नंबर ये 50 से बढ़कर के 80 हो गए, ये 80 से बढ़ के 100 हो गए, वो दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, तो फूड की तो कमी होगी ही होगी। देन व्हाट विल हैपन? देन दे विल बी फाइट, दे विल बी अदर टाइप ऑफ कंडीशंस, है ना। 1 मिनट। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कोई भी हैबिटेट जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही टॉलरेट कर सकता है, कोई ही एडजस्ट कर सकता है, कोई अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे उनके नंबर उस लिमिट से ज्यादा हो जाएंगे, देन देयर विल बी कंपटीशन, देयर विल बी क्या कहते हैं स्ट्रगल, एंड देन ओनली दोज इंडिविजुअल्स व्हिच हैव द सुटेबल कैरेक्टर दे विल सर्वाइव। और वो नंबर जैसे उस नंबर पे आ जाते हैं कैरिंग कैपेसिटी पे, देन अगेन दे लिव इन ईज। तो ये चलता रहता है नेचर में, ठीक है। ऐसा नहीं सारे के सारे मर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई जंगल है उसके अंदर 60 रैबिट जिंदा रह सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी 16 रैबिट की है, 60 रैबिट्स की है, लेकिन रैबिट के नंबर बढ़ के 80 हो गए, कंपटीशन होगा, एंड देन देयर विल बी स्ट्रगल, एंड इन दिस कंपटीशन सम में डाई, एंड जैसे नंबर 60 वाले कंफर्टेबल पा जाते हैं तो वो चलते रहेंगे। तो यही होता है, आप ये देखिए कि नंबर ऑफ कैट्स, नंबर ऑफ पिजन, नंबर ऑफ पीकॉक, नंबर ऑफ अदर एनिमल्स, नंबर ऑफ अदर बर्ड्स जिनका ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं है, उनके नंबर को हम नहीं चेक कर रहे हैं, बट देयर नंबर आर मोर और लेस कांस्टेंट।
ठीक है। ह्यूमन वाले में तो क्या है, ह्यूमन का अपना इंटरेस्ट होता है, ह्यूमन अपने इंटरेस्ट के कारण कई सारे, और अगर आप अपने मोहल्ले के कुत्तों को भी देखेंगे ना, तो कई सारे ह्यूमन को हम खाना खिला रहे हैं जबरदस्ती। देर इज ऑलवेज क्या कहता है आर्ग्यूमेंट बिटवीन मैम एंड माई सेल्फ। ठीक है, वो कोई सा भी कुत्ता जा रहा हो उसको रोक के खाना खिलाना, और वो एक कुत्ते के पिल्ले हो गए तो उनको खाना खिलाना। मैंने कहा भैया देखो, भगवान ने उनको दिया है उनकी एबिलिटी, यू नीड नॉट टू पैरालाइज देम, है ना। हम क्या है, हम उनको खाना प्रोवाइड करके उनकी कंपटीशन की, उनकी एबिलिटी को जैसे हम हैं वैसे ही बना रहे हैं। जैसे मैं अभी चश्मा लगा रहा हूँ, बिना चश्मे के मैं पास कर नहीं पढ़ सकता। तो अगर 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 मतलब मेरे को सरवाइव करना है नेचर के अंदर, तो मेरे पास ये कुव्वत होनी चाहिए था कि मैं देख सकूं। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आई एम आर्टिफिशियली एक्वायरिंग इट। ठीक है, आर्टिफिशियली एक्वायर करना नेचुरल रूल नहीं है। चलो हम ह्यूमन के लिए तो कैपेबल कर लेंगे। ह्यूमन में तो क्या है कि जो लंगड़ा है, लूला है, काना है, बहरा है, अंधा है ना, सो मच सो की पीपल हु आर पैरालाइज्ड, उसको भी हम चला रहे होते हैं। उनको भी हम जो है बेड पे जो है वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा चढ़ा करके हम जो है चला रहे होते हैं। लेकिन नेचर में ये तो चीज अलाउड नहीं है। नेचर में तो क्या फिटेस्ट मेंबर ही सर्वाइव करना चाहिए, तो वहाँ कंपटीशन होता रहता है। एंड देन कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। तो कैरिंग कैपेसिटी किसको कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी किसको कहेंगे, दैट इज किसी भी हैबिटेट के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्पीशीज, ये जो कैरिंग कैपेसिटी है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। वो डॉग्स के लिए कुछ और है, कैट्स के लिए कुछ और है, पिजन के लिए कुछ और है, रैबिट्स के लिए कुछ और है, डियर के लिए कुछ और है, एलिफेंट के लिए कुछ और है, स्नेक्स के लिए कुछ और है, और लाइन के लिए कुछ और है। हर स्पीशीज के लिए। और अब ये नहीं कह सकते कि अगर उस जगह पे 500 रैबिट मिलेंगे तो 500 लाइन भी मिलेंगे। इमेजिन कीजिए 500 लायन और 500 रैबिट। 500 लायन रैबिट तो चलो घास ही खाएंगे, प्लेंटी ऑफ ग्रास अवेलेबल है, 500 लाइन क्या खाएगा, तो वो इन्हीं को निपटाएगा। तो ये कभी सरवाइव नहीं, मतलब वो हो नहीं सकता। तो वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। द नंबर फॉर कैरिंग कैपेसिटी फॉर इंसेक्ट में बी वेरी हाई, एंड फॉर बर्ड्स इट में बी हाई, बट इट में बी लेस फॉर द प्रेडेटर। जो टॉप प्रेडेटर्स होंगे उनके लिए ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ह्यूमन बीइंग के लिए कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी जगह पे जो है वो हर जगह की के लिए ये क्रॉस हो चुकी है कैरिंग कैपेसिटी। और इसको हमने कई कई बार बढ़ाया है आर्टिफिशियल मीन से। हमने खुद हमारे देश के अंदर, या तो पहले का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इंपोर्ट कर लीजिए, आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है बाहर से मंगा लीजिए, आपके पास जमीन अवेलेबल नहीं है आप मल्टी स्टोरी खड़ी कर लीजिए, आपके पास जॉब अवेलेबल नहीं है आप लोन ले लीजिए। खुद सरकारें लोन ले लेती है। ठीक है, आईएमएफ से लोन ले लिया उसने अपने, तो ग्रीस के हाल क्या हुआ, वेनेजुएला का हाल क्या हुआ, है ना। ऐसे कई सारी कंट्रीज उन्होंने लोन ले लेके के, ब्राजील का हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या लोन ले करके अपने लोगों को जो है दिया। अब हाल ये होगा कि वो पे करने की हालत में नहीं है और लोन उनका वो चलता जा रहा है। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए जो है हमने कैरिंग कैपेसिटी को अलग अलग तरीके से बढ़ाया। ठीक है, तो जब हम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो फिर वो जो क्रॉस कर लेते हैं। ये जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लैंड का जो हमारा एरिया है पूरी दुनिया का वो सम 2.7% है, मे बी 2.3 या 2.5% लैंड है हमारे पास पूरी दुनिया का। और पॉपुलेशन हमारे पास 1/6 of the world's population we got in India. Is there any relation? 2.5% land of the world, and we got every 6% Indian. So naturally this resource is unevenly distributed. ठीक है, अब now if we talk about it that sense कि कनाडा उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है पर उसकी सारी जमीन जो है वो आइस कैप से कवर्ड है, तो वहाँ पे वो क्या फूड प्रोड्यूस करेगा। सेम इज विद रशिया, है ना। रशिया का भी काफी सारा हिस्सा जो है वो आइस से कवर्ड है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो वो लैंड की भी अगर हम बात करेंगे, अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं यूरोप इन द क्या कहते हैं गल्फ कंट्रीज, तो लैंड तो काफी ज्यादा है उनके पास, लेकिन प्रोडक्टिविटी का है, तो उन चीजों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी कई चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर द सेंस ऑफ बायो बट इट इज आल्सो फॉर इकोनॉमिक्स। हाँ, ये कई सारी चीजों को ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, शुड आई कंटिन्यू? 9:05 7:05 हो गए।
इसको पूरा कर दूं? छोटा सा बचा है। नो सर, है? सर कल। ठीक है, कल करेंगे। तो फिर यहाँ तक का कैरिंग कैपेसिटी तक का याद रखना आप। ओके, गुड डे। थैंक यू सर। वेलकम।